सारे पॉइंट्स के अपने अपने एक वैल्यू होती है जिसको हम एड्रेस बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। लोकल टाइम जो कि लॉन्जिट्यूड पे डिपेंड करता है, 180 डिग्री पॉइंट इज सेम, दैट्स व्हाई वी डोंट राइट लेट्स से देयर आर अदर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब इनकी वैल्यू कितनी होगी, तो सन अभी यहाँ पे आएगा तब इन लोगों का 12 PM होगा। सो प्राइम मेरिडियन से जब वेस्ट की तरफ, लेट्स डिफरेंशिएट बिटवीन द लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। Hello dear students, welcome to Concept Corridor, a path that will lead you from the world of information to the world of knowledge, and I am your mentor Yogita Dhami. So finally from today onwards we are going to start the social science syllabus for class 6 students. Yes, I was getting so many requests in the science videos कि मैम SST का syllabus भी start करो, मैम social science पढ़ा दो। So कर दिया start, ठीक है? Though we are starting bit late, but still I will try to cover up maximum chapters possible for your first term. So stay tuned, ठीक है? And now if you want me to keep on working hard for you, same as like this, do subscribe the channel, share it among your friends, and if you feel that it is worth watching, do like it and hype the video. Yes, there is a new option of hyping the video. Once you will like it, you will see the hype option, a yellow star with a rainbow color next to the comment section. Do hype it. ठीक है? चलो. So let's get started with the first chapter of your social science, that is locating places on the earth. Now what are we going to study here? What are the mysteries we are going to unfold in this chapter? Let's find it out. The big questions. The first question is, what is a map? How do we use it? What are its main components? Second question, what are coordinates? How can latitude and longitude be used to mark any location on the earth? And the third question, how are local time and standard time related to the longitude? So these are the big mysteries we are going to unfold on this chapter. And by the end of the chapter, you will be able to answer all of these questions on your own. ठीक है? So let's get started with the first question here, that is, what is a map? बेटा जेनजी वाले बच्चे हो तुम लोग, अगर तुम लोगों से पूछो व्हाट इज मैप तो बोलोगे मैम गूगल मैप है ना, एक ऐप है, गूगल प्ले स्टोर में मिलती है। यस बेटा, नो डाउट यू नो अबाउट दैट गूगल मैप, बट हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पेपर मैप। थोड़ा सा पीछे वाले एरा में चलते हैं, है ना, अभी एडवांस टेक्नोलॉजी वाले में नहीं। चलो, सो व्हाट इज अ पेपर मैप? समथिंग लाइक दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैप। आपकी बुक का स्क्रीनशॉट है, ठीक है। नाउ लेट्स से यू आर हैविंग दिस काइंड ऑफ थिंग इन योर हैंड एंड इट इज द अननोन सिटी। इस जगह आप पहुंच गए हो, यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे हो। नाउ इफ यू वांट टू गो टू द अपार्टमेंट, यू कैन इजीली नेविगेट। यहाँ पे डायरेक्शंस दिख रही है, सो व्हाट यू विल डू, यू विल गो टू नॉर्थ एंड देन यू विल गो टुवर्ड्स द ईस्ट, यू विल रीच टू द अपार्टमेंट। यस, you will go to south and take the first turn towards the east and you will reach to the hospital. Yes, if you will not take turn, you will go straight towards the south and then you will take the turn, you will reach to the school. So what it is doing, this map is helping you to navigate and reach to the different places, and these different places are represented here with the help of some picture. So this is the visual representation, right? So what is a map? Map is the visual representation of all the places which are there in a particular area. जो भी एरिया को हम मैप में दिखा रहे हैं, उसी में जो जो प्लेसेस हैं उनको हम विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं। गॉट इट? और ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन कैसा है? ऐसा लग रहा है हम ऊपर से देख रहे हैं। लेट्स से यू आर देयर इन द एरोप्लेन और वहां से आप नीचे कोई चीज देखो तो कैसा दिखेगा? समथिंग लाइक दैट, है ना, ऐसा द टॉप व्यू है। यस, दिस इज मैप। एंड व्हाट मैप इज डूइंग? मैप इज हेल्पिंग यू टू नेविगेट. You are able to go here and there, you are able to locate the things. Yes, so that's why this is how we are going to locate the places on the earth. ठीक है? So let's know more about the map. A map is a visual representation of an area showing the locations of different places, features such as mountain, rivers, cities, roads, apartments, many things. ठीक है? और कैसा दिखता है? You look at the surface as if you are viewing from the top. ऐसा लगता है मैप। Got it? And map can be simple and complex also. अभी जो मैप देखा था that was the simplest form of map. ठीक है, क्योंकि वो छोटे से एरिया का था। अगर वहीं पे पूरा वर्ल्ड का मैप होता तो देन फिर वो सिंपल होता क्या? नो, ऑब्वियसली नॉट, है ना, फिर वो कॉम्प्लेक्स मैप हो जाता। Got it? Now, how do you study about these maps at home? है ना, गूगल से बाहर आ जाओ, है ना, वैसे पूछ रही हूँ मैं। अगर आपके पास मैप आपको पढ़ना हो तो क्या पेपर अलग अलग ऐसे पड़े रहते हैं देन यू स्टडी अबाउट देम? नो, देयर इज अ बुक ऑफ मैप. What it is called? Atlas. Yes, so you are having atlas at home. वहां उसको आप खोल के then you navigate, you find out the places. ठीक है? So what is an atlas? Atlas is a book or collection of map. ये MCQ क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, so you can underline it. Understood? Now, बेटा map can be of different type depending that what are we going to show with the help of that map. ठीक है? The main three categories are, the first one is physical map, political map and thematic map.
सबकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए एंड आइडेंटिफिकेशन भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब करके देखो, लेट्स से दीज आर द 3 मैप्स हियर. Now you have to identify, observe them carefully and identify that which one is representing the physical map, which one is political and which one is thematic map. अब मैंने सीक्वेंस में बोल दिया तो हो सकता है आप ऐसे तुक्का मार के भी बता दो, बट ट्राई टू ऑब्जर्व. फर्स्ट वन, हैव अ लुक हियर. बेटा यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, यहाँ पे ऐसे ब्लू से बहुत सारी लाइन दिख रही है ना. और ब्लू लाइन्स क्या रिप्रेजेंट करती है मैप में यूजुअली, पता होगा, रिवर्स, वाटर बॉडीज. यस. And this brown whole stretch, this is representing the mountain obviously. So what this map is showing? This map is showing the geographical area of India. Yes, यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ कहाँ पे हैं, जोग्राफिकली क्या नेचर में प्रेजेंट है, वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है. यहाँ पर कहीं पर भी आपको स्टेट की मार्किंग नहीं दिख रही, का पता नहीं पड़ रहा राजस्थान कहाँ खत्म हो रहा है, ये नहीं पता पड़ रही कहाँ से यहाँ पे पंजाब शुरू हो गया. यस, so no state marking is there, only the geographical area is being represented. This is called physical map. ठीक है. So physical map is, it shows the natural features like mountain, rivers and lakes. Natural features represent होते हैं physical map में, ठीक है. Coming next, here what it is representing? It is representing a definite marking, boundaries of all the states which are there inside the India, different countries which are the neighbors. ठीक है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे proper boundaries represent हो रही हैं. This is called political map. ठीक है. So what is political map? It shows the boundaries of countries, states and cities. Am I clear? And the last one here, this is called thematic map. Now thematic map क्या करता है बेटा? thematic map एक particular information देगा आपको उस एरिया के बारे में. अब वो information कुछ भी हो सकती है. That information can be about the population density, कितनी population कहाँ पर है ना. That information may be a ratio of the old age person, a young age person, something like this. Yes, have a look here. So it focuses on a specific type of information such as population density, climate zone. So these all things can be represented by the thematic map. Thematic map में अलग अलग कलर्स का भी यूज होता है यूजुअली, ठीक है. यहाँ पे देखो कुछ ये वैल्यूज दी हुई हैं अलग अलग कलर्स के रिप्रेजेंट में. अब ये वैल्यू कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकती हैं. So this is a kind of information which this map is giving. Understood? So these are the 3 types of map. Clear? Now, how can we identify things in the map? हमको कैसे समझे मैप को? लेट्स फाइंड इट आउट. सो कॉम्पोनेंट्स ऑफ मैप्स, ठीक है बेटा. देर आर बेसिकली 3 कॉम्पोनेंट्स ऑफ मैप: डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड सिंबल. अगर किसी मैप के बारे में ये तीनों चीज़ें आपको पता हैं तो आप इजीली लोकेट कर सकते हो किसी भी प्लेस को, ठीक है. अब कैसे, ये चीज़ें कहाँ होती हैं? लेट्स फाइंड इट आउट. अगेन द सेम इंडिया मैप, ठीक है. और नाउ वेयर इज द डायरेक्शन? इस पूरे मैप में हमको कैसे पता डायरेक्शन कहाँ पर है? बेटा डायरेक्शन है यहाँ पर, ये देखो, दिस इज द वन. साइंस में मैग्नेटिक चैप्टर पढ़ लिया है तो यू मस्ट बी नोइंग दैट व्हाट इट इज. इट इज शोइंग दैट मैग्नेटिक कंपास. मैग्नेटिक कंपास में नॉर्थ साउथ वेस्ट होता है ना. अब यहाँ मैग्नेटिक कंपास आपके हाथ में नहीं चाहिए, बट इट इज शोइंग दैट डायरेक्शन. यस, सो दिस इज शोइंग द नॉर्थ डायरेक्शन. ये पूरा नॉर्थ है. फाइन, अंडरस्टूड. सो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, दिस इज बीइंग रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ दिस सिंबल. सो डायरेक्शन. Got it. Now next is distance. Now distance कहाँ पे शो हो रही है? इस पूरे में distance कहाँ शो हो रही है? Distance हो रही है ये. This scale is showing the distance. ठीक है. Now how it is showing the distance? We will understand about them in detail. आइए पहले इन तीनों को देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर है, ठीक है. So direction, distance. Now the next one is symbol. अब इस पूरे मैप में symbol तो बहुत सारे हैं. कहाँ पे हैं? रिवर के symbol. Yes. So this blue line, these are the symbol. So let's understand about them in detail one by one. And here we go with the first one, that is distance. पहले तो बेटा ये समझो कि distance क्यों एक important component है. Let's say you are going to different places from your home. You go to school, you go to mall, you go to market. What you do there? You travel different distances. Depending कि कौन सी कितनी दूर है कितनी पास है. Yes. But when you make things on the map, then how you will be able to find out the distance between the 2 points? आप A और B, let's say 2 cities हैं, उनके बीच में distance कैसे find out करोगे? You can do that with the help of scale which is given on the map. ठीक है. Let's try and understand. The distance between the 2 points represented on the map depends on the scale of the map it is using. It depends on the scale. अब कौन सा स्केल? जो रूलर वाला स्केल हमारे बैग में होता है, आपके पेंसिल बॉक्स में, उसकी स्केल की बात हो रही है? No. Let's try and understand. The scale is the ratio between the actual distance on the earth to the distance shown on the map. क्या बोला? इट इज अ रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द अर्थ टू द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप.
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ स्केल माइट शो 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इक्वल्स टू 500 मीटर इन द रियलिटी। लेट्स से कोई मैप है, अगर उस मैप में ये रेशियो होगा तो इसका मतलब अगर 1 सेंटीमीटर, आप किसी भी दो डिस्टेंस के बीच में अगर 1 सेंटीमीटर है उस मैप में, तो ऑन अर्थ एक्चुअल ग्राउंड में वो 500 किलोमीटर डिस्टेंस शो होगा। अंडरस्टूड? ये तो सिंपल है। यहाँ पे देखो, दीज टू मैप्स आर गिवन, नाउ लेट्स ट्राई एंड इंटरप्रेट दिस स्केल। यहाँ पे ये लाइन दिख रही है, दिस इज द स्केल, राइट? नाउ व्हाट आर यू सपोज टू डू? यू हैव टू ब्रिंग आउट योर रूलर, जो स्केल हम 15 सेंटीमीटर यूज करते हैं या कोई भी, उस पर रखो, एंड नाउ यू मेजर दिस लाइन फर्स्ट ऑफ ऑल। ये हो सकता है 1 सेंटीमीटर, हो सकता है 2 सेंटीमीटर, हो सकता है 3 सेंटीमीटर भी हो, बट दिस डिस्टेंस वट एवर इट विल कम, इट इज रिप्रेजेंटिंग 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर ऑन अर्थ। मीन्स मैप का ये स्केल एक्चुअल ग्राउंड में 500 किलोमीटर रिप्रेजेंट करेगा। नाउ लेट्स से दिस स्केल इज रिप्रेजेंटिंग 2 सेंटीमीटर, ठीक है? तो आप यहाँ मैप में कहीं पर भी 2 सेंटीमीटर रखो, तो उन दो पॉइंट्स के बीच में जो अगर 2 सेंटीमीटर है डिस्टेंस मैप में, तो एक्चुअल ग्राउंड में कितना होगा? 500 किलोमीटर। अंडरस्टूड? सो दिस इज वन ऑफ द स्केल दैट यू माइट सी इन द मैप। देयर इज अनदर टाइप ऑफ स्केल, दिस वन ऑल्सो। यहाँ पे क्या दिया हुआ, वहाँ पे प्रॉपर आपको रेशियो बताया हुआ है, 1:2 कितना है ये, 8670, सो 800 मिलियन, ठीक है? 1:800 मिलियन। अब क्या ये है बेटा, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ऑन दिस मैप इज रिप्रेजेंटिंग 800 मिलियन सेंटीमीटर। अब हम सेंटीमीटर में तो बात करते नहीं है, जब हम डिस्टेंस ऑफ द सिटी बिटवीन द सिटीज कंट्रीज फाइंड आउट करते हैं, तो हमें किलोमीटर में चाहिए, है ना? तो किलोमीटर में कैसे करेंगे? इट इज 8, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज सेंटीमीटर। इसको आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो पहले तो मीटर में कन्वर्ट करो, तो डिवाइडेड बाय 100 होगा, मीटर में कन्वर्ट हो गया। फिर मीटर को 1000, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइडेड बाय 1000 भी होगा। कर लो, 3 0 गए, यहाँ पर 3 0। सो व्हाट इट इज देयर, दिस इज 1 सेंटीमीटर इज रिप्रेजेंटिंग 800 किलोमीटर ऑन अर्थ। So 1 centimeter on this map is representing actually 800 kilometer on ground. So this is the ratio. Understood? So this is called the scale of the map. अब देखो यहाँ पर स्केल क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 500 किलोमीटर। यहाँ का मैप का स्केल रिप्रेजेंट कर रहा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 800 किलोमीटर। अंडरस्टूड? एम आई क्लियर? चलो, नाउ गोइंग फॉर द अनदर कॉम्पोनेंट दैट इज डायरेक्शन। बेटा डायरेक्शन बहुत ईजी है, यू नो देयर आर 4 डायरेक्शंस, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, पता है ये? यस। So have a look here. Maps use main 4 directions, north, south, east, west. These are called cardinal directions or cardinal point. ये word important है, एग्जाम में आ सकता है in MCQ और other way also. So remember this, cardinal points. ठीक है? अब बेटा जब कभी भी आप इन मैप जो ये डायरेक्शन है इनमें रोटेट करो, कैसे? नॉर्थ इज ऑलवेज टुवर्ड्स द टॉप, तो नॉर्थ से अगर ईस्ट की तरफ जाना है तो कैसे मूव करेंगे आप? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। So if you will go clockwise direction from north, you will reach east, then south, then west, and then again back to the north. लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो नॉर्थ से पहले कहाँ पहुँचोगे? वेस्ट में। ठीक है? ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नेविगेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है? Now have a look at this picture. This is the picture of magnetic compass. पढ़ लिया ना? Yes. तो यहाँ पर देखो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट क्लियरली मार्क्ड, बट अदर देन दीज 4 डायरेक्शन देयर आर इंटरमीडिएट डायरेक्शन ऑल्सो ना, ये वाले। यस, यू नो नॉर्थ एंड ईस्ट, तो अगर कोई चीज यहाँ पर, कोई सिटी यहाँ पर है तो आप नॉर्थ ईस्ट से बता सकते हो ना। सो देयर आर इंटरमीडिएट डायरेक्शन ऑल्सो अदर देन दीज 4 कार्डिनल पॉइंट्स। हैव अ लुक, अदर देन दीज इंटरमीडिएट डायरेक्शन आर ऑल्सो यूज लाइक नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। बेटा इनको बोला जाता है ऑर्डिनल पॉइंट्स। आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है तो एग्जाम में नहीं आएगा, दैट्स व्हाई आई हैव आल्सो नॉट रिटन हियर, बिकॉज हम कार्डिनल पॉइंट पढ़ रहे हैं तो ऑर्डिनल पॉइंट भी सुन लो। इनको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल पॉइंट्स। अंडरस्टूड? चलो, नाउ most maps simply have an arrow marked with the letter N which points towards the north direction. यहाँ पे देखो it is showing N north, बाकी east, south, west में मेंशन है। अब इसके बाद इनके इंटरमीडिएट डायरेक्शन आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। अंडरस्टूड? सो दिस मच यू शुड नो अबाउट द डायरेक्शन। नाउ कमिंग फॉर द थर्ड वन, दैट इज सिंबल्स। बेटा सिंबल्स का सिग्निफिकेंस समझने के लिए लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। लेट्स से यू वांट टू ड्रॉ अ हाईवे, अ विलेज रोड एंड अ रेलवे ट्रैक ऑन द मैप। ठीक है? सारे के सारे लाइन से ही ड्रॉ होंगे, अलग अलग टाइप की, लेकिन अगर आपने तीनों के लिए सेम टाइप ऑफ लाइन इफ यू आर यूजिंग, विल यू बी एबल टू डिफरेंशिएट? आप बाद में खुद क्या डिफरेंशिएट कर पाओगे? ऑफ कोर्स नॉट। कैसे पता पड़ेगा कौन सी चीज, कौन सी लाइन आपका हाईवे रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा रेलवे ट्रैक? यस, सो यू नीड अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिंबल फॉर ईच एंड एवरी थिंग
so that you can differentiate कि कौन सी चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है. That's why symbols are important. Map uses symbols to represent different features. For example, a small drawing of tree might represent the whole forest, or a dotted line might represent a road. ठीक है, यहाँ पे देखो, this is a map. यहाँ पर ये बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मैप्स लेजेंड या मैप्स की. ठीक है, इसमें क्या दिया रहता है? इसमें आपको एक तरह से हेल्प बॉक्स है, डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स आर देयर, उनके नाम दिए हुए हैं. नाउ यू ट्राई टू लोकेट दिस सिंबल ऑन दिस मैप, तो आपको पता पड़ जाएगा कि लेक है. अगर ये सिंबल होगा तो पता पड़ेगा रिवर है. अंडरस्टूड? सो दिस वे यू कैन इजीली फाइंड आउट द थिंग्स ऑन द मैप. These symbols are explained in the map's legend or key. This is map's legend or key. Now these symbols are different from different countries. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी कंट्री सेम यूज़ कर रही हैं. अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग सिंबल हो सकते हैं, बट दे रिजेंबल, ऐसा मतलब थोड़ा बहुत सिमिलरिटी होती है. देखो, different countries uses different set of symbols. In India, the Survey of India, it is a government body, and this government body decides this symbol for Indian map. Got it? The Survey of India, the government body has fixed a set of symbols for the map of India. These are some of the symbols. Screenshot of your NCERT. कुछ पता होना चाहिए. देखो, रेलवे लाइंस के लिए बेटा ये ब्रॉड गॉज, दिस इज द मीटर गॉज, एंड दिस इज RS रेलवे स्टेशन, है ना. मेटल्ड रोड, अनमेटल्ड रोड, सिंपल प्लेन 2 लाइन, मेटल्ड रोड, एंड दिस इज अनमेटल्ड रोड. इंटरनेशनल और स्टेट बाउंड्रीज में कैसे डिफरेंस करेंगे? थिक लाइन्स, ब्रॉड लाइन्स विद 1 डॉट, इंटरनेशनल. यहाँ पर स्मॉल लाइन्स विद 1 डॉट, दिस इज द स्टेट, एंड विदाउट डॉट स्टेट डिस्ट्रिक्ट. ठीक है. नेक्स्ट वन, रिवर, वेल, टैंक, ये बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो जाते हैं. नेक्स्ट, टेम्पल, चर्च भी इजी है. PO पोस्ट ऑफिस, PTO दिस इज पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, PS पुलिस स्टेशन. सेटलमेंट, दिस इज रिप्रेजेंटिंग सेटलमेंट. सेटलमेंट मीन्स जो रेजिडेंशियल एरिया होता है ना. और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्रेवयार्ड्स. यहाँ पर दिस इज ट्रीज एंड ग्रास. Got it? So these are some of the symbols that you should know. बनाने को भी आ सकता है ये. ठीक है, चलो. Now we are going for the next topic, that is mapping of earth. We are done with the components of the map. जो 3 थे हमने डिटेल में पढ़ लिए हैं. Now we are going to draw the whole map of the earth. ठीक है. अब बेटा मैप अर्थ का कैसे बनाएंगे? अर्थ का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल, है ना. आप उसको ऑरेंज से या फिर मस्कमेलन से रिजेंबल कर सकते हो. यस. So it is spherical, a bit spherical, but yes, flat at the 2 poles. Yes. अब अगर ऐसा कोई शेप है तो उसको अगर फ्लैट सरफेस पे बनाने जाओगे तो कैसे बनाओगे? आपके बुक में भी एग्जांपल दिया हुआ है. इफ लेट्स से यू आर हैविंग हाफ ऑफ द पील ऑफ ऑरेंज, अब उसको आप फ्लैट करने जाओ तो पॉसिबल है? जब तक उसके कॉर्नर्स में ब्रेक क्रैक्स नहीं आएंगे तब तक वो फ्लैट नहीं हो सकता. Yes. So drawing the map of whole earth on a plain sheet, it is difficult because of its shape. Yes, देखो, the earth is a sphere, so representing it on a flat map is challenging. ये मैप आपका इनिशियल फर्स्ट पेज में दिया हुआ है. यहाँ पे क्या किया हुआ है? 2 जो सर्कल्स हैं उनको आपको ड्रॉ करके दे दिया है. ठीक है. लेकिन इसको देख के अगर किसी ने ग्लोब और अर्थ के बारे में उसको नहीं पता हो तो उसको समझ में आएगा कि इट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग अ स्फेरिकल मैप. नो, ये तो ऐसा लग रहा है कि 2 सर्कल काट के रख दें यहाँ पर. Yes. So exact way of mapping the earth is only possible in this globe. Yes. Why? A globe is more accurate way to represent the earth because it maintains the correct proportion and distance. But a globe is the exact replica of the earth shape. So because it is the exact replica, it can represent the exact distance also. ठीक है. यहाँ पे देखो, so globe is a sphere on which map is drawn. अगर ये definition आ गई that what is a globe? So globe is a sphere first of all. Yes. और उसमें होता क्या है? On this there is a map. Map is drawn. Understood? चलो, let's try and understand more about this globe here. So globe is a true model of earth and it can be rotated in the same way as the earth rotates on its axis. I hope you know that earth rotates on its axis. कितनी देर में वो रोटेशन होता है? कितनी देर में होता है? If you know the answer, टाइम के साथ ही पॉज करके बताओ जल्दी से. कितने टाइम में होता है? 24 आवर्स. 24 आवर्स में अर्थ अपनी एक्सिस पे एक रोटेशन कंप्लीट करती है. यस. नाउ व्हाट इज दिस एक्सिस? एक्सिस क्या है ये, है ना. देखो, द अर्थ इज टिल्टेड ऑन एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड एक्सिस. अर्थ थोड़ी सी टिल्टेड है एक इमेजिनरी लाइन पे जिसको एक्सिस बोलते हैं. अगर यही चीज आप ग्लोब पे देखेंगे तो ग्लोब के बीच में यहां से यहां तक एक निडल होती है बीच में. दैट निडल इज रिप्रेजेंटिंग द एक्सिस. ठीक है. So in the globe, the needle on which it is held and can rotate freely, ये रोटेट हो जाता है ना ऐसे आराम से.
तो उसको क्या बोलते हैं, नीडल बोलते हैं। ये देखो, देयर इज अ ग्लोब हियर, सो ये जो यहाँ पे नीडल जा रही है, दिस इज द एक्सिस एंड इट कैन रोटेट फ्रीली, है ना, ऑन विच इज हेल्ड ऑन दिस एक्सिस एंड नाउ इट कैन रोटेट फ्रीली। सो दिस इज द रोटेशन ऑन द एक्सिस। नाउ 2 points on the globe through which the needle passes are the 2 poles। यहाँ पर ये वाले पॉइंट से और ये वाले पॉइंट से निडल पास हो रही है। ये क्या है आपका नॉर्थ पोल और ये क्या है आपका साउथ पोल। दिस मच यू शुड नो। समझ में आ गया इतना? चलो, नाउ वी हैव टू लोकेट थिंग्स ना। चैप्टर का नाम क्या है? लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। नाउ वी आर गोइंग टू लोकेट द प्लेस ऑन द अर्थ। अब कैसे करेंगे? हाउ वी कैन लोकेट द होल सो मेनी प्लेसेस ऑन दिस स्मॉल ग्लोब? This can be done with the help of coordinates. To accurately locate places on the earth, we uses coordinate system based on latitude and longitude. So from here onwards, we are going to study in detail about the coordinates and these two, latitude and longitudes. ठीक है? चलो, first one, understanding the coordinates. अब पहले तो ये समझो कि कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है। बेटा, कोऑर्डिनेट का सिंपल अगर भाषा में बोला जाए तो इट इज द एड्रेस। इट इज द एड्रेस ऑफ एनी पर्टिकुलर प्लेस ऑन द ग्लोब। अगर कोई भी पॉइंट ए है, लेट्स से ए ये है, अगर इसका कोऑर्डिनेट आपको पता है तो आप इजीली लोकेट कर लोगे, भाई ये पॉइंट ए है, ये दूसरा पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट है। इन सारे पॉइंट्स के अपने अपने एक वैल्यू होती है जिसको हम एड्रेस बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। अगर उसको इंटरप्रेट करना आ गया तो यू कैन इजीली फाइंड आउट, इजीली लोकेट। ठीक है, अब देखो, a coordinate system uses one or more numbers to uniquely determine or identify the position of a particular point। ठीक है, अब ये यूनिक नंबर कहाँ से मिलेंगे? कहाँ से मिलेंगे यूनिक नंबर? बेटा, ये यूनिक नंबर मिलते हैं आपको लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड से। ठीक है, देखो, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन और पिन पॉइंट द पोजिशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस on a particular space on earth. The position of a point on earth written in terms of its latitude and longitude is called its coordinate। बेटा, ये लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड्स की अपनी अपनी कुछ वैल्यूज होती हैं। अगर वो वैल्यूज आपको रीड करनी आ गई तो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से एक एड्रेस मिलेगा आपको, उसको क्या बोलेंगे हम? कोऑर्डिनेट बोलेंगे। वो उस प्लेस का कोऑर्डिनेट होगा। अभी करके देखेंगे, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो, लेट्स गेट इनटू डिटेल ऑफ दिस लैटिट्यूड। बेटा, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड इनको याद कैसे करें? पहले तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो ये है, देखो, लैटिट्यूड लेटी हुई लाइन है, द लाइन्स विच आर पासिंग फ्रॉम वेस्ट टूवर्ड्स द ईस्ट, ऐसे लेटी हुई लाइन है, दे ऑल आर लैटिट्यूड। जो लॉन्ग लाइन है, लॉन्ग, वो सारी लॉन्जिट्यूड। पहले तो याद करने का तरीका है, याद कर लो ऐसे। ठीक है, अब लैटिट्यूड जो लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेटी हुई लाइन है, दे आर इमेजिनरी लाइन। ठीक है, द लैटिट्यूड्स आर द इमेजिनरी लाइन्स विच रन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, अब कितनी लैटिट्यूड है? पहले तो एक मेन लैटिट्यूड है जो अर्थ को नदर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड कर देती है, बिल्कुल सेंटर से। सो द लैटिट्यूड विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ विच कैन डिवाइड इट इनटू 2 हेमिस्फेयर, उसको बोला जाता है इक्वेटर। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये देखो, ये येलो लाइन दिख रही है, इसने क्या किया? नदर्न हेमिस्फेयर, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल। सो ऊपर वाला नॉर्थ पोल के साथ, नीचे वाला साउथ पोल के साथ, नदर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर, इन दोनों को डिवाइड कर दिया। दिस इज इक्वेटर। ठीक है, सो it is an imaginary line that circles the earth halfway between the north and south pole and it is 0 degree latitude। कि क्या वैल्यू है इक्वेटर की? इक्वेटर की वैल्यू है 0 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, अभी वैल्यूज निकालना सिखाऊंगी मैं, देखो कैसे करते हैं। The equator divides the earth into southern and northern hemisphere, so latitude measures this distance from equator towards the north pole and south pole। इक्वेटर से कितना नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, कितना साउथ की तरफ जा रहे हो, ये डिस्टेंस आपको किससे पता पड़ता है? लैटिट्यूड से पता पड़ता है। ठीक है, देखो, नाउ कमिंग टू द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। बेटा, मेन लैटिट्यूड जो अर्थ को हाफ वे डिवाइड कर रहा है नदर्न और सदर्न हेमिस्फेयर में, उसको क्या बोला? इक्वेटर। लेकिन इक्वेटर के साथ पैरेलल दूसरी लाइन भी जा रही है ना, ये वाली, ये दिख रही है। सम अदर पैरेलल लाइंस आर ऑल्सो गोइंग फ्रॉम दिस वेस्ट टू ईस्ट, दे आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है, अब बेटा लैटिट्यूड पे थोड़ा सा एक और कुछ और चीज़ें देखते हैं। ये सारे जो पैरेलल्स लाइन जा रही हैं, वो सारे जो सर्किल हैं वो सेम साइज के हैं? नो, ऑफ कोर्स नॉट। द लार्जेस्ट सर्किल इज एट द सेंटर, दैट इज इक्वेटर। जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाओगे, यू गो टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये जो सर्किल का डायामीटर है वो छोटा होता जा रहा है और अल्टीमेटली पोल में आके वो सिर्फ एक डॉट हो जाएगा। अंडरस्टूड? So these latitudes are not in same size, they are in varying size depending वो कहाँ पर है।
Largest circle is at equator and point at the poles. Am I clear? But they are parallel to each other. इतना सब पता होना चाहिए. चलो देखो. So parallels of latitude, imaginary lines that run parallel to the equator, they measures the distance of north and south from the equator. For example, the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn is at approximately 23.5 degree latitude and 23.5 degree again latitude respectively. अब यहाँ पे देखो 23.5 डिग्री 20.3.5 डिग्री, क्या दोनों सेम ही जगह पे हैं क्या? दोनों जगह 23.5 लिखा है, राइट? The Tropic of Cancer is at 23.5 degree and Tropic of Capricorn is also 23.5 degree. फिर तो सेम ही जगह हो गई ना. बट नो, यहाँ पे एक चीज मिसिंग है बेटा. दिस इज 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड दिस इज 23.5 डिग्री साउथ. दिस इज द लोकेशन ऑफ दिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. अब ये डिग्री के कैसे समझ में आएगा? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड हियर. बेटा यहाँ पर हम लैटिट्यूड्स की बात कर रहे हैं, सो वी विल फोकस ऑन दिस लाइन राइट नाउ. दिस इज रिप्रेजेंटिंग इक्वेटर, 0 डिग्री वैल्यू होती है इसकी. And this is the north pole, this is the south pole. Equator can divide this whole earth into two parts, northern zone and southern zone. इतना समझ में आ गया? Now, I have divided this diagram in this way so that you can understand the angles. Confuse नहीं होना. जो latitude है वो अर्थ को northern और southern hemisphere में डिवाइड करता है, ये से समझाने के लिए. ठीक है? Now, this equator is 0 degree. Now, why it is 0 degree? Let's say center से एक बेस लाइन स्टार्ट हुई, तो ये जो इक्वेटर है वो बिल्कुल बेस लाइन पे है, दोनों के बीच में कोई एंगल ही नहीं है, तो 0 डिग्री. ठीक है? लेकिन आपको इस बेस लाइन से नॉर्थ पोल पे जो इक्वेटर है, पॉइंट वाला वहां पर जाना है, तो कितना एंगल बना? 90 डिग्री. यस. ऐसे ही अगर आपको साउथ पे जाना है, सो दिस इज 90 डिग्री. नाउ व्हाट? दिस इज 90 डिग्री नॉर्थ एंड दिस इज 90 डिग्री साउथ. गॉट इट? बेटा और भी तो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हैं, सो लेट्स से देयर आर अदर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. अब इनकी वैल्यू कितनी होगी? इसी बेस लाइन से प्रोटेक्टर से आप एंगल मेजर कर लो. सो दिस विल कम आउट अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री. दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री. ये आपका लगभग 60 डिग्री आ जाएगा. ये भी 60 डिग्री. ठीक है? सो डिग्रीज आर बेसिकली बेस्ड ऑन दिस बेस लाइन. वहां से हम एंगल से मेजर कर लेते हैं. अब ये 30 डिग्री ये भी है, 30 डिग्री ये भी है. अगेन डिफ्रेंसिएशन करना है, कैसे करेंगे? इट इज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सो 30 डिग्री नॉर्थ, दिस इज 30 डिग्री साउथ. सिमिलरली 60 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ. समझ में आया कैसे डिग्री निकालना है? नाउ अभी बेटा हमने समझा था ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दोनों की वैल्यू कितनी थी? 23.5. बट 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ. अब लोकेट करो कहाँ पे 23.5 कहाँ पे होगा बताओ? नॉर्थ का. तो ये 30 डिग्री नॉर्थ ये है, सो ऑलमोस्ट 23.5 डिग्री ये होगा. यस. और 23.5 लगभग यहाँ पे होगा. सो दीज आर द two lines, Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. 23.5 is the value. Understood? So अगर आपको इंटरप्रेट करने के लिए आ गया, let's say 67 डिग्री नॉर्थ, 67 डिग्री नॉर्थ. अब अगर नॉर्थ किसी वैल्यू के एंड में नॉर्थ है, तो समझ जाओ कि भाई ये लैटिट्यूड की बात हो रही है, क्योंकि लैटिट्यूड ही है जो पूरे अर्थ को नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करते हैं, तो उनके वैल्यूज के पीछे नॉर्थ या साउथ लिखा होता है. ठीक है? तो लैटिट्यूड की बात हो रही है ना. 67 डिग्री नॉर्थ, तो 67 डिग्री नॉर्थ है, तो ये इक्वेटर 67 लगभग यहाँ कहीं ऊपर, यहाँ की बात हो रही है. सो दिस वे यू हैव टू फाइंड आउट. अंडरस्टूड? सो दिस वे यू कैन आइडेंटिफाई द लोकेशन विद द हेल्प ऑफ डिग्रीज. नाउ इज देयर एनी अदर सिग्निफिकेंस ऑफ लैटिट्यूड? यस. These latitude help us in deciding the climate of that particular place, है ना? They determine the climates. देखो climate zone, the earth is divided into different climate zone based on latitudes. बेटा ये जो इक्वेटर है इसका एक और सिग्निफिकेंस है ना, क्या है? इट रिसीव्स द मैक्सिमम सनलाइट. बहुत गर्मी होती है यहाँ पे. यस. सो इक्वेटर एंड द नियर बाय जोन, दिस इज कॉल्ड टॉरिड जोन. क्या बोलते हैं इसको? टॉरिड जोन. द एरिया नियर द इक्वेटर इज जनरली हॉट एंड दिस इज कॉल्ड टॉरिड जोन. उसके बाद द एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक्स एंड पोलर सर्किल्स, ये आपका ट्रॉपिक और ये वाला यहाँ पर इधर कहीं पोलर सर्किल होता है. यस. तो इस वाले जोन को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड टेम्परेट जोन. यहाँ पे टेम्परेचर मॉडरेट होता है ना? गर्मी बारिश सब कुछ होता है यहाँ पे. इसके बाद लास्ट वन, द एरिया नियर द पोल इज कॉल्ड फ्रिजिड जोन. वहां जाके फ्रीज हो जाते हैं वहां पे, है ना? फ्रिजिड जोन. ऑब्वियसली यहाँ पे पोल के पास जो एरिया होता है, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, वहां पर क्या होता है? फ्रिजिड जोन बोलते हैं उसको. सो दीज आर द 3 जोन मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी. एग्जाम में आने के चांसेस हैं, पता होना चाहिए. ठीक है? चलो, नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट द लॉन्जिट्यूड्स.
ना मैंने क्या बताया था कैसे याद करना, लॉन्जिट्यूड्स आर द लॉन्ग लाइन्स। अब लॉन्ग लाइन कहाँ से कहाँ को जाती हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। सारी की सारी लॉन्जिट्यूड्स मूव्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। Yes, and now these are again imaginary lines. So let's try and understand. Longitudes, also known as meridians. Another name of longitudes is meridians. Are the imaginary vertical lines that run from north to south pole. है ना? अब बेटा नॉर्थ से अगर कोई चीज साउथ में आ रही है तो नॉर्थ और साउथ के बीच के वैल्यू तो सेम ही है ना, कहीं से भी चले जाओ। लेट्स से ग्लोब इज देयर, ये लो, लेट्स से दिस इज द ग्लोब, ठीक है। अब यहां से नॉर्थ में यहां से जाऊं या इसको रोटेट करके फिर इस जगह से जाऊं, कहीं से भी चले जाओ, ये लाइन तो सेम ही होगा, डिस्टेंस तो सेम है। यस, सो ऑल द लॉन्जिट्यूड्स आर सेम इन लेंथ। लैटिट्यूड में क्या था, लैटिट्यूड का सर्कल अलग अलग था, द लार्जेस्ट सर्कल वॉज इक्वेटर, और जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाओगे साइज कम हो रहा था। लेकिन लॉन्जिट्यूड में ऐसा नहीं होता, ऑल द लॉन्जिट्यूड्स आर सेम इन साइज। अंडरस्टूड। चलो आगे देखते हैं। प्राइम मेरिडियन, लॉन्जिट्यूड का नाम क्या है, मेरिडियन भी है, तो ऐसे में पूरे मेरिडियन में से एक मेरिडियन ऐसी है जिसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। द प्राइम मेरिडियन, ऑल्सो नोन एज ग्रीनविच मेरिडियन, इज एन इमेजिनरी लाइन दैट रन्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल थ्रू ग्रीनविच इंग्लैंड एंड इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड। ठीक है, देखो ये है वो प्लेस, नॉर्थ पोल से साउथ पोल में जो वर्टिकल लाइन जा रही है, दीज आर मेरिडियंस, जिनको हम लॉन्जिट्यूड बोलते हैं। इन सारी मेरिडियन में से वन देयर इज प्राइम मेरिडियन विच पासेस फ्रॉम ग्रीनविच इंग्लैंड एंड दैट इज द 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड। इसका डिग्री कितना है, 0 डिग्री। फिर से डिग्री आगे देखो, है ना, दिस इज 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड। अब अगर यहाँ से अर्थ को हम एग्जैक्टली हाफ डिवाइड कर दें तो कौन से हेमिस्फीयर में डिवाइड होगा, बेटा ये डिवाइड होगा आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि यहाँ पे वेस्ट है, और यह वाला होगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर बिकॉज दिस साइड इज द ईस्ट। सो लैटिट्यूड डिवाइडेड द अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर, longitude divided earth into western and eastern hemisphere. Am I clear this much? चलो आगे समझते हैं। Now the prime meridian divides the earth into eastern and western hemisphere as I mentioned. ठीक है, now let's talk about the other meridians also. ये तो prime meridian है सिर्फ, बाकी meridians भी तो है। So meridians of longitudes, these are the imaginary lines that run from north pole to south pole. ये सारी की सारी लाइन जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, सारी की सारी क्या है, मेरिडियन है। ये रेड वन, ओनली द वन पर्टिकुलर, दिस इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। ठीक है, प्राइम मेरिडियन। नाउ व्हाट आर दीज लॉन्जिट्यूड्स रिप्रेजेंटिंग, दे मेजर्स द डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। बेटा प्राइम मेरिडियन क्या करता है, वो अर्थ को वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रहा है ना। तो अब आपका प्राइम मेरिडियन से दूसरा लॉन्जिट्यूड, लेट्स से दिस लॉन्जिट्यूड, ये वाला लॉन्जिट्यूड मेंशन कर देते हैं। सो प्राइम मेरिडियन से दिस ब्लू लॉन्जिट्यूड, हाउ फार इट इज, ये कितना दूर है। पहली बात तो ये कौन सी डायरेक्शन में है, ये प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की डायरेक्शन में है। यस, अब नाउ कितना डिग्री, सो 0 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, तो ये ऑलमोस्ट आपका आ रहा है 40 डिग्री। सो दिस इज 40 डिग्री ईस्ट, 40 डिग्री ईस्ट। तो यहाँ पर जो लॉन्जिट्यूड्स होते हैं उनके डिग्रीज के साथ ईस्ट या वेस्ट लिखा जाता है, बिकॉज दे आर मेजरिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन टुवर्ड्स द वेस्ट और ईस्ट। ठीक है, यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल न्यूयॉर्क इज एट अप्रॉक्सीमेटली 74 डिग्री वेस्ट, तो समझ जाओ कि भाई ये प्राइम मेरिडियन है, ये वेस्ट है, दिस इज द वेस्ट साइड, तो यहाँ पे आपको डिग्री ढूंढना है 74। टोक्यो इज 140 डिग्री ईस्ट, सो आप प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ देखोगे, देन यू विल फाइंड आउट 140 डिग्री कहाँ पर होगा। अंडरस्टूड। नाउ लेट्स फाइंड आउट मोर अबाउट दिस डिग्रीज। यहाँ पे एक हेल्प बॉक्स में आपके बुक में दिया हुआ है, एज यू कैन सी द ग्लोब, द मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड एट 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट आर द सेम। सो यहाँ पर हम वेस्ट और ईस्ट लिखते ही नहीं है, 180 डिग्री वैल्यू के लिए वेस्ट और ईस्ट नहीं लिखा जाता। अब क्यों नहीं लिखा जाता, पहले डिग्री निकलती कैसे है, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड अगेन विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। पहले देखा हुआ है, राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन दिस लाइन, दिस इज प्राइम मेरिडियन रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, वैल्यू कितनी है इसकी, 0 डिग्री। सो यहाँ पर लेट्स से दिस इज द प्राइम मेरिडियन, इसकी वैल्यू 0 डिग्री ये है। ठीक है, अब बेटा अगर 0 डिग्री कहीं पे वैल्यू है और एक पूरा सर्कल, फुल सर्कल ले लो, तो एंगल कितना बनता है, 360 डिग्री। और हाफ वे में सर्कल में कितना, हाफ वे लाइन में कितना बनता है, 180 डिग्री, है ना। सो लेट्स से दिस इज 0 डिग्री, तो इसके स्ट्रेट लाइन ये पीछे जा रही है, तो ये एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, नाउ फ्रॉम दिस प्राइम मेरिडियन इफ पर्सन इज रोटेटिंग गोइंग दिस वे टुवर्ड्स फ्रॉम द वेस्ट 180 डिग्री तक पहुंचा, या फिर फ्रॉम ईस्ट
अगेन रोटेट करके 180 डिग्री पहुंचा, तो लाइन तो पॉइंट तो सेम ही है ना, यस और नो? यहां से जाओ या यहां से जाओ, वेस्ट से जाओ या ईस्ट से, 180 डिग्री पॉइंट इज सेम, दैट्स वाई वी डोंट राइट देयर वेस्ट और ईस्ट। बाकी पॉइंट्स देखो, अगर इस वाले पॉइंट की बात करो तो कितना एंगल है, ये 0 और ये वाली लाइन के बीच में एंगल है 90 डिग्री, सो दिस इज 90 डिग्री व्हाट, 90 डिग्री वेस्ट, बिकॉज इट इज टुवर्ड्स द वेस्ट, एंड दिस वन इज 90 डिग्री ईस्ट, यस। सो बिकॉज देर आर टू वैल्यूज, सो हम उसको मेंशन कर रहे हैं वेस्ट 90 डिग्री वेस्ट, 90 डिग्री ईस्ट, लेकिन 180 डिग्री के लिए एक ही वैल्यू है, तो उसमें इसलिए मेंशन नहीं होता है। Am I clear? बाकी वैल्यू भी देख लो, ये अगर एंगल मेजर करोगे तो 30 डिग्री आएगा, 30 डिग्री वेस्ट, दिस विल बी 30 डिग्री ईस्ट, ये 60 डिग्री वेस्ट, दिस विल बी 60 डिग्री ईस्ट, दिस वे द होल सर्कल टिल 180 डिग्री। सो लॉन्जिट्यूड वैल्यूज रेंज फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री। बेटा लैटिट्यूड के वैल्यू 0 से 90 डिग्री तक ही थी, यहां पर 180 डिग्री तक वैल्यू मिलती हैं। Am I clear? Now what is the significance of this longitude? How it helps? वो हम आगे पढ़ेंगे। अब पहले फिर से आते हैं हम कहां पर, कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। देखो, अंडरस्टैंडिंग द कोऑर्डिनेट्स और ग्रिड लाइंस, ठीक है। सो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स इंटरसेक्ट और क्रॉस ईच अदर एंड फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ लाइन और ग्रिड लाइंस, इन्हीं को ग्रिड लाइंस बोलते हैं। अभी आपको ये सारी जो लेटी हुई लाइन है यानी लैटिट्यूड्स हैं और जो लॉन्ग लॉन्जिट्यूड्स हैं, समझ में आ गया। अब बेटा जहां पर भी ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, ये वाला, ये इनकी वजह से क्या हो रहा है, देयर इज अ होल ग्रिड सिस्टम विच कैन बी सीन ऑन दिस ग्लोब, यस, ग्रिड लाइंस बोलते हैं इनको। ऑल द प्लेसेस ऑन अर्थ हैज अ प्रिसाइज लोकेशन दैट कैन बी डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ अ ग्रिड ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स। ये जो ग्रिड सिस्टम है ना, इन्हीं से हम आराम से कोई भी प्लेस कर सकते हैं, कोई भी प्लेस को बता सकते हैं, ठीक है। अभी बता के देखते हैं, ठीक है, बड़ा मजा आएगा। The value is called the coordinate of that particular place. For example, coordinates of Eiffel Tower दिए हुए हैं 49 डिग्री नॉर्थ एंड 2.2 डिग्री ईस्ट। बेटा 49 डिग्री नॉर्थ क्या मतलब है इसका, मतलब लैटिट्यूड या लॉन्जिट्यूड, जल्दी बताओ। लैटिट्यूड है ना, लैटिट्यूड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर, तो नॉर्थ लिखा है इसका मतलब लैटिट्यूड है। 0 डिग्री, दिस इज इक्वेटर, 0 डिग्री, नाउ 49 डिग्री, सो 0 डिग्री 30 डिग्री, 30 के बाद 40 50 60, तो 50 के नीचे, बिल्कुल इस लाइन के कहीं नीचे होगा। नेक्स्ट 2.2 डिग्री ईस्ट, सो 0 डिग्री ईस्ट, नाउ 2.2 डिग्री, बिल्कुल 0 डिग्री के लाइन के बगल से, इसके पास से कहीं जा रहा होगा। सो 2.2 डिग्री इज समवेयर, ये आपका ये था लैटिट्यूड वाला, तो दिस इज द पॉइंट हियर, जस्ट वेट, सो दिस इज द पॉइंट हियर समवेयर, ये आपका यहाँ पर एफिल टावर होगा, ठीक है। एक और देखो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिल्ली 29 डिग्री नॉर्थ एंड 77 डिग्री ईस्ट, अगेन नॉर्थ मतलब लैटिट्यूड, सो 29 डिग्री, दिस इज 0 30, ये 30 वाली लाइन के नीचे यहाँ पे कहीं होगा, है ना। और 77 डिग्री ईस्ट, सो ईस्ट साइड में देखना है 77 डिग्री, दिस इज 0 30 60 70 और 77, ये कहीं यहाँ पर। सो आपका 30 ये लाइन इधर जा रहा था और 77 ऑलमोस्ट यहाँ पे आ रहा है, ये दिस इज योर दिल्ली, देख लो ऑलमोस्ट एग्जैक्ट पोजीशन पे आ रहे हैं हम, यस। सो लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ दिस वे, Am I clear? चलो, नाउ वी आर गोइंग फॉर अंडरस्टैंडिंग द टाइम जोन। बेटा जब लॉन्जिट्यूड में पढ़ा रही थी उस समय मैंने बताया था कि इसका सिग्निफिकेंस बाद में पढ़ेंगे, और वेयर अदर प्लेसेस इट इज हेल्पफुल, सो दिस इज द टाइम टू अंडरस्टैंड द टाइम जोन, यस। बेटा लॉन्जिट्यूड एक्चुअली हेल्प्स इन डिसाइडिंग द टाइम जोन ऑन दिस होल अर्थ। अब कैसे, देखो ये दिस इज ग्लोब, these all are longitudes here. Let's say sun is falling from this side, so all the longitudes which are receiving the sunlight, वहाँ पर डे हो रहा है, पीछे साइड में क्या हो रहा है, यहाँ पर नाइट, रोटेशन हुआ। अब ये वाले लॉन्जिट्यूड सन की तरफ आ गए, सो यहाँ पर डे और यहाँ पर नाइट। सो डे और नाइट के साथ चेंज क्या होता है, एक्चुअल में टाइम ही तो चेंज होता है, यस। सो दीज लॉन्जिट्यूड्स हेल्प अस इन डिसाइडिंग द टाइम, ठीक है। अब देखो कैसे, लोकल टाइम, द अर्थ रोटेशन कॉजेज डिफरेंट प्लेसेस टू एक्सपीरियंस डे एंड नाइट एट डिफरेंट टाइम्स, है ना। और जैसे डे एंड नाइट चेंज होता रहेगा, टाइम भी चेंज होगा। लोकल टाइम इज डिटरमाइंड बाय द प्लेसेस लॉन्जिट्यूड, प्लेसेस विद सेम लॉन्जिट्यूड हैव सेम लोकल टाइम। अब इसको समझते हैं आगे, पहले तो ये समझो कि ये डिसाइड कैसे हो रहा है, हाउ लॉन्जिट्यूड्स आर डिसाइडिंग द टाइम। देखो बेटा इसको समझने के लिए यहाँ बड़ा सा डायग्राम दिया हुआ है। अर्थ कंप्लीट द रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस विद इन 24 आवर, ये पता है। अर्थ का फुल रोटेशन, फुल वन रोटेशन कितनी देर में होता है, 24 आवर्स में होता है।
और वन फुल रोटेशन में कितना डिग्री का एंगल वो कवर करते हैं? 360 डिग्री। जितने भी लॉन्जिट्यूड्स हम डिग्री में तो मेजर कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई डिग्री इज रिक्वायर्ड। सो हाउ मच डिग्री? फुल रोटेशन 360 डिग्री। हमने देखा भी था हाफ वे वाज 180 डिग्री, सो फुल इज 360। ठीक है, सो अगर 360 डिग्री फुल रोटेशन 24 आवर्स में हो रहा है, सो इसको डिवाइड करो तो मिनिमम वैल्यू कितनी मिल रही है आपको? 15 डिग्री। 15 डिग्री, नॉट दिस वन। यस, 15 डिग्री। यस, सो 15/1, so what it is showing? Every 15 degree change in the longitude is giving you 1 hour time. अब 1 hour या तो लेस या तो मोर, कहां से? प्राइम मेरिडियन से। ठीक है, सो प्राइम मेरिडियन, लेट्स से दिस इज द प्राइम मेरिडियन, जहां पे वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री। यहां दिख नहीं रहा, दिस इज 0 डिग्री। ठीक है, सो 0 डिग्री पे लेट्स से अभी 12 PM हो रहा है, अभी 12 PM हो रहा है, और सन कहां को राइज होता है? सन राइज होता है ईस्ट में। सो दिस इज योर ईस्ट साइड। यस, प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर, सो दिस इज द ईस्ट। सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट। यहां से राइज हुआ तो यहां सुबह हो गई, लेकिन इन वालों की सुबह हुई? अभी नहीं हुई ना। सो ईस्ट से दिस इज कमिंग हियर एंड दिस इज 12 PM, राइट? दिस इज 12 PM। अब 12 PM के बाद इन लोगों का तो अभी तक नहीं आया ना टाइम, ये तो सन अभी यहां पे आएगा तब इन लोगों का 12 PM होगा। सो प्राइम मेरिडियन से जब वेस्ट की तरफ जाते हैं बेटा, तो टाइम हमेशा कम होता है। टाइम क्या होता है? कम होता है। सो यहां पर अगर प्राइम मेरिडियन में 12 है, तो हर 15 डिग्री पे आप 1 आवर कम कर लो वेस्ट की तरफ। अगर आप 15 डिग्री 0 डिग्री से 15 डिग्री वेस्ट की तरफ जाओगे तो टाइम हो जाएगा 11 AM। आप फिर 30 डिग्री वेस्ट की तरफ जाओगे, टाइम हो जाएगा 10 AM। जितना जितना आप 15 डिग्री शिफ्ट होते जाओगे वेस्ट की तरफ, उतना आपका टाइम क्या हो रहा है? कम होते जा रहा है। यहां पर देखो, हियर व्हाट हैपेंड, सन यहां से राइज हुआ था, सनराइज हो गया, यहां पहुंच चुका है, तो यहां तो शाम हो गई ना, यहां पर क्या हो गई? अभी शाम हो गई, यानी टाइम ज्यादा हो गया। सो 12 PM अगर यहां पर है तो 15 डिग्री टुवर्ड्स द ईस्ट क्या होगा? 1 PM। और इधर चले जाओ तो 2 PM, और 15 डिग्री चले जाओ 3 PM। सो 1 आवर आपको यहां पर टुवर्ड्स द ईस्ट ऐड करना है, ऐड 1 आवर। यहां पर सब्सट्रैक्ट 1 आवर। टुवर्ड्स द वेस्ट साइड देयर इज अ सब्सट्रैक्शन ऑफ 1 आवर, टुवर्ड्स द ईस्ट साइड देयर इज अ एडिशन ऑफ 1 आवर। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं। सो अर्थ इज डिवाइडेड into 24 time zone, each 15 degree longitude wide. Each time zone represents 1 hour of time, as I mentioned here. For example, if it is 12 noon at Greenwich, it is 1 PM at 15 degree east longitude and 11 PM at west longitude. समझा दिया मैंने आपको, ठीक है? चलो आगे चलते हैं. Now let's explore. There is one question which is given. Two friends, one sitting in Porbandar, Gujarat, and other sitting in Tinsukia, Assam, are speaking on phone late afternoon. The later remarks that sun has set in Assam and it is now dark. जो तिनसुकिया यहाँ पर वाला फ्रेंड था, let's say B, इसने बोला भाई मेरे वहाँ तो रात हो गई है, बिल्कुल सन चला गया है ना? The former is surprised and says, but still it is full daylight here. भाई इसने बोला, जो यहाँ पोरबंदर में बैठा होगा, let's say A, इसने बोला है मेरे वहाँ तो बिल्कुल अभी दिन चल रहा है, यहाँ तो बिल्कुल बहुत तेज धूप है. Now, explain why and as a class activity, calculate the difference in local time between these two cities. Hint, now consider that difference in the longitude between the Porbandar and Tinsukia is 30 degree. बेटा कन्वीनियंस के लिए हमको यहाँ क्या बताया कि इनके बीच का डिफरेंस हमें कितना लेना है? 30 डिग्री लेना है, ठीक है? अब हम पहले यहाँ टाइम को समझेंगे लोकल टाइम यानी लॉन्जिट्यूड के हिसाब से. बेटा इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम यहाँ पर जो भी इसका लॉन्जिट्यूड है, मान लो दिस इज द वन, और इसके लिए हम ये वाला लेके चलेंगे. इनके बीच का डिफरेंस कितना बताओ हमको लेने के लिए? 30 डिग्री, ठीक है? अब इस लॉन्जिट्यूड के हिसाब से मान लो अभी बी के वहां पे टाइम चल रहा है कितना? लेट्स से 5 o'clock, ठीक है? 5 PM. लेट्स से दिस इज 5 PM एंड दिस पर्सन इज एक्सपीरियंसिंग कंप्लीट डार्क. इसको बोल रहा है कि मेरे वहां तो बिल्कुल रात हो गई है ना? क्यों? क्योंकि लॉन्जिट्यूड अभी यहां पर है. इस लॉन्जिट्यूड से अगर हम वेस्ट को मूव करेंगे तो 1 आवर टाइम विल बी डिक्रीज्ड. बताया था मैंने. अब अगर 15 डिग्री शिफ्ट करोगे तो 5 PM की जगह 4 PM,
और अगर फिर और 15 डिग्री 30 डिग्री है ना, 2 बार शिफ्ट करना पड़ेगा, तो 2 आवर्स का डिफरेंस है। सो 5 PM अगर ये है तो इसके वहां तो अभी 3 PM ही हो रहा होगा। लोकल टाइम जो कि लॉन्जिट्यूड पर डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो अभी तिनसुकिया आसाम में 5 PM चल रहा है, उसको लग रहा है पूरा रात हो गई, सन चला गया। इसके लिए तो यहाँ पे अभी 3 PM ही है ना, अंडरस्टूड। So local time varies according to the longitude, and because of that we experience different activities of sun around us. Am I clear? So here this all is happening because of the difference in the local time. कोई प्रॉब्लम इसमें? लेकिन बेटा इंडिया में क्या ऐसा होता है कि हमारा लेट्स से जम्मू कश्मीर में अभी सुबह के 7 बजे हैं और कन्याकुमारी में दिन के 12 बजे हो? नो, all over India if it is morning 7 o'clock, so everywhere it is morning 7 o'clock. भाई सब पूरे इंडिया के ऑफिस जो है मॉर्निंग में 10 o'clock खुलते हैं, पूरे इंडिया के स्कूल 7:30 मोस्टली शुरू हो जाते हैं, मोस्टली शुरू हो जाते हैं। यस, सो टाइम इज ऑल ओवर इंडिया सेम। तो भाई ये क्या है फिर, ये कैसे 5 PM और 3 PM? बेटा इसको इसलिए बोला जाता है लोकल टाइम। इसीलिए मैं बार बार आपको वर्ड में क्या बोल रही हूँ, लोकल टाइम। इट इज नॉट द स्टैंडर्ड टाइम। लोकल टाइम टोटली डिपेंड्स ऑन द लॉन्जिट्यूड, but to provide this symmetry all over the country, each country decides their standard time. फिर वो अपनी कंट्री में जितने भी लॉन्जिट्यूड पास हो रहे होते हैं ना, उनको इग्नोर करके एक स्टैंडर्ड टाइम शिफ्ट करती है एक किसी पर्टिकुलर लॉन्जिट्यूड के हिसाब से। ठीक है, हैव अ लुक हियर। So countries often adopt a standard time for the entire country based on the time at the specific meridian. बेटा उस कंट्री में कितने भी मेरिडियन पास हो रहे हैं वो सबको इग्नोर करके किसी एक पर्टिकुलर मेरिडियन के हिसाब से अपना एक सेट टाइम कर लेते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं उसको। फॉर एग्जाम्पल इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST इज 5.5 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम। बेटा ग्रीनविच अगर 12 PM चल रहा होगा तो हमारा अभी 5:30 PM चल रहा होगा, क्योंकि हम उनसे 5:30 आवर 5.5 आवर अहेड है। 5:30 आवर नहीं, 5.5 आवर अहेड है। ठीक है, चलो देखो, based on this there is again a question. Return to the two friends sitting in Gujarat and Assam. Now take this example to explain the difference between local time and standard time. बेटा वहां पर जो उन दोनों एक्सपीरियंस कर रहे थे वो क्या था, वो लोकल टाइम था, है ना। एक बोल रहा था कि भाई मेरे वहाँ सेट हो गया सन, दूसरा बोल रहा था मेरे वहाँ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनके लोकल टाइम में 2 आवर का डिफरेंस आ रहा था बिकॉज ऑफ द लॉन्जिट्यूड। लेकिन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से दैट्स वाई द पर्सन हु वाज सिटिंग इन द पोरबंदर वो कंफ्यूज हो गया, बोलता अरे आपके वहाँ भी 5 o'clock है, आपके वहाँ सनसेट हो गया, मेरे वहाँ भी 5 o'clock है। वो क्यों था? बिकॉज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम सेट्स द टाइम ऑल ओवर द कंट्री। ठीक है, सब जगह 5 o'clock हो रहा होगा। Am I clear? Understood? चलो देखो, so local time is based on the sun's position and vary with the longitude, while standard time provides uniformity within the time zone and facilitating the global coordination. Clear? So now this is the map of the whole world showing the different time zones. ये क्या है यहाँ पर? स्टैंडर्ड ग्रीनविच। अब ग्रीनविच से अगर आप ईस्टवर्ड जाओगे तो +1 आवर होता है, बताया था मैंने। तो यहाँ पे देखो हर कंट्री में आपको प्लस कुछ नंबर्स का एडिशन दिखाई देगा। दिस वन इज +1 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच। यहाँ पे देखो +2 आवर, +5 आवर, +6 आवर, हमारे इंडिया +5.5 आवर। सो दीज कंट्रीज आर मूविंग अहेड ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहाँ प्लस होता है। यहाँ पे वेस्ट की तरफ जाओगे देखो सब जगह माइनस दिखेगा आपको। ये ग्रीनविच से यहाँ पे -1, अगर यहाँ 12 PM तो यहाँ 11 AM, यहाँ पे देखो -3 तो यहाँ 12 PM तो यहाँ अभी 9 AM हो रहा होगा। ठीक है, सो एवरी कंट्री इज हैविंग देयर ओन सेट स्टैंडर्ड टाइम। इतना समझ में आया? नाउ बेटा व्हाट विल हैपन टू द बिगर कंट्रीज, लेट्स से रशिया। अब रशिया में अगर एक सेट स्टैंडर्ड टाइम है और उस स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग अभी यहाँ पर मॉर्निंग का 7 AM हो रहा है ना, इस वाली जगह पे 7 AM हो रहा है। तो 7 AM हो रहा है, यहाँ से सनलाइट आई, चलो इन लोगों ने 7 AM को एक्सपीरियंस किया। लेकिन अगर इस वाली जगह पे भी आप 7 AM बोलोगे तो यहाँ तो सन ही नहीं पहुंचा है अभी, ये तो रात ही चल रही है, तो रात में 7 AM कैसे हो सकता है ना। फिर वहां पे कंफ्लिक्ट हो जाएगा। सो द कंट्रीज विच आर हैविंग टू लार्ज एरिया, बिगर एरिया, तो उन जगह पर एक से ज्यादा स्टैंडर्ड टाइम होता है। ठीक है, हैव अ लुक हियर। From the above explanation, it may seem that every country is having one standard time, but that is not the case. It is not always the case. Some countries like Russia, Canada, USA are too large to have single time zone. So USA has 6 time zone, Russia has 11 time zone, which means if you are traveling in Russia from one end to the another end, you have to fix your watch 11 times as you will move to the different time zones. रशिया के अंदर ही आपको 11 टाइम अपनी घड़ी को सेट करना पड़ेगा। ठीक है, अंडरस्टूड? चलो नाउ मूविंग अहेड एंड गोइंग फॉर द लास्ट टॉपिक, द इंटरनेशनल डेट। टाइम चेंज कैसे होता समझ में आ गया? लॉन्जिट्यूड से एवरी 15 डिग्री मूव कर लो यार, यहाँ वहाँ
बस 1 आवर डिक्रीज कर दो या इंक्रीज कर दो, ठीक है। अब डेट कैसे चेंज होती है बेटा? डेट चेंज होती है द इंटरनेशनल डेट लाइन से। डेट चेंज कहां से होती है? इंटरनेशनल डेट लाइन से। और वो कहां है? कौन सी लाइन है वो है, इट इज एन इमेजिनरी लाइन लोकेटेड अराउंड 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड। बेटा 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड कहां है? ग्रीनविच। तो 80 डिग्री कहां होगा? बिल्कुल ग्रीनविच वाली लाइन के पीछे, है ना, बिल्कुल पीछे। मैंने एक्सप्लेन भी किया था 180 डिग्री कहां पे था, राइट? 180 डिग्री, दैट इज द इंटरनेशनल डेट लाइन। बेसिकली वो भी एक लॉन्जिट्यूड ही तो है, सो इट इज एन इमेजिनरी लाइन विच इज ऑलमोस्ट एट 180 डिग्री। अब क्या वो सीधी लाइन 180 डिग्री वाली वो पूरी की पूरी इंटरनेशनल डेट लाइन है? नो बेटा, इंटरनेशनल डेट टाइम बिल्कुल स्ट्रेट नहीं कंसिडर करते हैं। वाई? बिकॉज लेट्स से वो इंटरनेशनल डेट लाइन यानी 180 डिग्री वाला जो लॉन्जिट्यूड है वो एक कंट्री के बीचों बीच पास हो गया, तो अगर हम उसको स्ट्रेट कंसिडर कर लेंगे तो उस कंट्री में एक जगह हो रहा होगा 23 जुलाई और दूसरी जगह हो रहा होगा 22 जुलाई, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। तो उसको, इस कॉन्फ्लिक्ट को हटाने के लिए उसको थोड़ा सा डेविएट भी करा जाता है, ठीक है। देखो, द इंटरनेशनल डेट लाइन इज अप्रोक्सीमेटली एट 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड एज इट डेविएट्स इन प्लेसेस टू अवॉइड डिवाइडिंग सम कंट्रीज इनटू 2 डिफरेंट डेज। कंट्रीज में ऐसा ना हो कि 2 अलग अलग दिन काउंट हो जाएं, उसको अवॉइड करने के लिए उसको थोड़ा सा डेविएट किया जाता है, किसको? इंटरनेशनल डेट लाइन को। अंडरस्टूड? चलो देखो आगे देखते हैं। नाउ व्हेन यू क्रॉस दिस लाइन द डेट चेंजेस बाय 1 डे। जैसे ही आपने इस लाइन को क्रॉस किया आपका दिन 1 डे से बढ़ गया या कम हो गया। अब कैसे हुआ समझते हैं। इफ यू क्रॉस इट मूविंग ईस्टवर्ड यू विल सबट्रैक्ट 1 डे एंड इफ यू क्रॉस इट मूविंग वेस्टवर्ड यू विल ऐड 1 डे। अब ये ऐसे क्यों? व्हाई इट इज सो? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। फिर से उसी में आ गए, कौन सा मैप, ठीक है, जहां पे टाइम जोन अलग अलग दिख रहे थे। अभी तक हम सारी स्टडीज किससे कर रहे थे? इससे कर रहे थे। ये क्या है? ग्रीनविच वाला 0 डिग्री। अभी हमें काम किससे? 180 डिग्री वाले से, बिल्कुल इसके पीछे। अब लेट्स से दिस वाज अ राउंड सिलेंडर, मतलब ये पूरा अर्थ का ये वाला ये फ्लैप है। इस पूरे पेपर को अभी खोल के रख दिया है। सो 0 डिग्री के जो बिल्कुल पीछे आएगा वो 180 डिग्री ये दिखा रहा है ये। सो दिस इज द इंटरनेशनल डेट लाइन। अब देखो ये कैसे डेविएट कर रही है। ये है, ये कंट्रीज को बचाने के लिए थोड़ा सा डेविएशन दिखा रहे हैं। अंडरस्टूड? नाउ उसके आगे क्या बताया? एज यू विल क्रॉस, हम सन यहां से आता है ईस्ट से, वेस्ट गए 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 और जैसे ही इसको क्रॉस किया तो नेक्स्ट डे आ गया। लेट्स से दिस इज 22 जुलाई, तो यहां जैसे ही इसको क्रॉस हो गया सन, तो ये अब यहां से 23 जुलाई स्टार्ट हो गया। सो 23 जुलाई मतलब इसके बाद क्या है? ये है ना, ये वाला फ्लैप, ये अभी राउंड था, अभी खोल के रखा हुआ है, तो ये इन लोगों का 23 जुलाई शुरू हो। एट लास्ट लेट्स डिफरेंशिएट बिटवीन द लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। इसके बाद वी आर डन विद द चैप्टर। देखो लैटिट्यूड, ये अर्थ, ये लैटिट्यूड है ना,
दीज वर द लॉटिट्यूड. लॉन्जिट्यूड, ये लॉन्जिट्यूड, ये तो बिल्कुल वो लग रहा है मस्कमेलन. ठीक है, अब डिफरेंस देख लें फटाफट से. इट रन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इट रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. लैटिट्यूड वेस्ट टू ईस्ट, लॉन्जिट्यूड नॉर्थ टू साउथ. 0 degree latitude is known as equator. This is 0 degree, it is equator. And this 0 degree is known as prime meridian. All latitudes are different in size. बताया था equator सबसे बड़ा होता है, उसके बाद छोटा 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 पोल वाला डॉट हो जाता है. So all latitudes are different in size but they are parallel to each other. Here all longitudes are same in size but they are not parallel to each other. ये parallel नहीं है ना, these are not parallel to each other. Next, लैटिट्यूड डिवाइड्स द अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर. यहाँ पर ये डिवाइड करता है वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर में. ठीक है. नेक्स्ट, लैटिट्यूड वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, जबकि लॉन्जिट्यूड्स की वैल्यू डिफर करती है 0 डिग्री से 180 डिग्री तक. यस, हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, 90 डिग्री वेस्ट, 90 डिग्री ईस्ट, फिर 110 डिग्री ईस्ट वेस्ट, 110 डिग्री ईस्ट, ऐसे हो सकता है. नेक्स्ट, लैटिट्यूड डिसाइड्स द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस. हमने पढ़ा था ना, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन, क्या था ये, क्लाइमेटिक कंडीशन थी डिपेंडिंग ऑन द लैटिट्यूड. यहाँ से क्या डिसाइड हुआ, यहाँ से डिसाइड हुआ टाइम. सो लॉन्जिट्यूड डिसाइड्स द टाइम ऑफ द प्लेस. अंडरस्टूड. चलो, with this we are done with this chapter. I hope you were able to understand and comprehend each and every concept और उनके पीछे का रीज़न. बेटा ये जो SST में कंसेप्ट होते हैं ना, वो सिर्फ बता दिए जाते हैं, अगर उनको समझ के कर लो तो बहुत मज़ा आता है पढ़ने में. आई होप यू हैड द थ्रिल while studying. चलो, सी यू सून फॉर द नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.